ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएससीआई। বিএসএসসিআই বেলুড়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বিএসএসসিআই বেলুড়ের বুকে সংস্কৃতির পথ চলা মূলত 2017 সালে একটি ছোট্ট নেটের কোচিং, যেখানে নেট সেটের স্টুডেন্টদেরকে আমরা গাইড করতাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আমাদের মনে আসে যে নেট সেট তো হলো, স্বপ্ন পূরণ হলো, কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণ তো এখানে থেমে থাকার নয়। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে শুধু নেট সেট নয়, নেট সেটের পরে আমাদের যে অরিজিনাল, আমাদের যে স্বপ্ন দেখা, আমাদের যে প্যাশন, শিক্ষকতা করা, সেই প্রফেসরি বা রিসার্চ বা গবেষক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যখন ভাবতে শুরু করা গেল, তখন দেখা গেল প্রথম সমস্যা, কি ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা রিসার্চ করব, টপিক কি হবে। স্টুডেন্টরা যখন দিশাহীন, তখন আবারও আমাদের কাছে তাদের আবদার, স্যার আপনারা কিছু করুন। এবং তোমাদের সেই আবদারে সাড়া দিয়ে 2022 সালে আমরা শুরু করি আমাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম সার্চ টু রিসার্চ। এবং ছোট্ট ছোট্ট পায়ে আমরা 1 বছর অতিক্রান্ত করেছি এবং সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে কম বেশি 20টা সেশন আমরা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। এগুলোর প্রত্যেকটি ইউটিউবে দেওয়া আছে। সংস্কৃতের ন্যায় থেকে শুরু করে দর্শন, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ন্যায়শাস্ত্র, সমস্ত কিছু আমরা কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপে, এবং আজকে সেই পদক্ষেপের আরেকটি সেশনে আমরা চলে এসেছি। এবং আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তা রূপে পেয়ে গেছি আমাদের প্রফেসর প্রসূন দত্ত সিংহ মহাশয়কে। আমি প্রসূন দত্ত সিংহ মহাশয়কে বিএসএসসিআই এর তরফ থেকে, সার্চ তরফ থেকে স্বাগত জানাই। এবং শুধু তিনি একা নন, আমাদের সঙ্গে একেবারে চিরপরিচিত, সর্বক্ষণ থাকার মতো সুতপা ম্যাডাম, লেডি প্রেবন কলেজের পক্ষ থেকে সুতপা ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে আছেন। এছাড়াও আজকে আমরা আমাদের এখানে গেস্ট হিসাবে পেয়ে গেছি আমাদের সকলের প্রিয়, পশ্চিমবঙ্গের একেবারে বলা যায় নতুন ইউনিভার্সিটি, মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট থেকে ডক্টর তানিয়া শিকদার মহাশয়কে। এবং আরো একজনকে আমরা পেয়েছি, ডক্টর সঙ্গীতা বৈদিকী মহাশয়াকে। সব মিলিয়ে একটা নক্ষত্র খচিত সন্ধ্যা। এবং আজকের আমাদের বিষয়টা কিন্তু বেশ অন্যরকম। আমরা কালিদাসের সাহিত্যে ফুল, ফল, পাখি, নায়ক, নায়িকা, রস, ছন্দ, এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মূল্যবোধ। এই সমাজের অবক্ষয়, মানুষের মূল্যবোধের অভাব যখন প্রতি ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে, মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, লাইক কমেন্টের দৌড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তখন মূল্যবোধ কোথায় যেন একটা ঠুনকো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গবেষণার বিষয় হিসাবে কালিদাসের সাহিত্যে জীবন এবং মূল্যবোধ কিভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে তার লেখনীতে, সেটা নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব। আশা করি এই আলোচনা আগামীর গবেষকদেরকে পথ দেখাবে। তাই এত সুন্দর একটি বিষয়ে আমি আর বেশি সময় নষ্ট করব না। আমি সরাসরি আমাদের প্রিয় অনন্ত স্যারকে অনুরোধ করব আজকের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য। অনন্ত। হ্যাঁ, অমিত দা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে। बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च के पक्ष से उपस्थित सभी शोधार्थी छात्र छात्राओं को शुभेच्छा व अभिनंदन। आज हमारे सत्र में उपस्थित हैं अध्यापक श्री प्रसून दत्त सिंह महाशय, वरिष्ठ अध्यापक तथा भाषा एवं मानविक विद्या विभाग के मुख्य परिचालक, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार। आज उनसे हम सब सुनेंगे कालिदास के साहित्य में जीवन तथा मूल्यবোধ के ऊपर आगामी दिनों में हम लोग क्या क्या शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं। स्वागत भाषण के माध्यम से हम संक्षिप्त में उनके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे। वे अपने स्नातकोत्तर कक्षा तथा पीएचडी और डीलिट की डिग्री
B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मतलब मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, वहां से लाभ किए हैं। कर्म जीवन में कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में तथा उसी विश्वविद्यालय के अंगीभूत 3-4 कॉलेज में अपने अध्यापन जीवन के शुरुआत तथा विभागीय प्रधान के रूप में भी अपना योगदान रखे हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी विभागीय प्रधान तथा वरिष्ठ अध्यापक के रूप में उनका योगदान रहा है। एमजीसीयू के गांधी भवन तथा कैंपस डायरेक्टर के रूप में भी वे अपना जो कार्य कुशलता है, कर्म कुशलता है, उनको अंजाम दिए हैं। प्राय 3 छात्र छात्राएं उनसे अपना शोध कार्य संपन्न किए हैं। मुख्य अतिथि, मुख्य समन्वयक व मुख्य परिचालक के रूप में विभिन्न संस्थाओं में उनका योगदान रहा है। कहीं चेयरपर्सन के रूप में हो, कहीं मुख्य वक्ता के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के संगोष्ठी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोसियम, इन सभी जगह में दृष्टिकोण नामक एक गवेषणा पत्रिका के भी वे संपादक रहे हैं और संस्कृत भूषण तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान भी लाभ किए हैं। आज इन्हीं के साथ हमारे सत्र में उपस्थित है श्रद्धेया अध्यापिका वेदांत देशिके, हम लोग बोल सकते हैं, वेदांत विषय में उनका चर्चा है, वो चर्चा करती हैं, तानिया शिकदार महाशया। मैं उनको भी स्वागत निवेदन कर रहा हूँ BSSCI सर्च टू रिसर्च के तरफ से, कोऑर्डिनेटर मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय मुर्शिदाबाद। और हम लोगों के साथ उपस्थित है श्रद्धेया अध्यापिका व्याकरण विशारद श्री संगीता वैदिकी महाशया, गया कॉलेज गया, मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई। और हम लोगों के साथ उपस्थित है हम लोगों के सदा प्रेरणादात्री तथा मुख्य चालिका शक्ति डॉक्टर श्रुतपा राय महाशया, श्रद्धेया विभागीय प्रधान लेडी ब्रेबोन कॉलेज कोलकाता। आज हम लोग इस सत्र से जानेंगे कालिदास के जीवन तथा मूल्यबोध के विषय में। तो अभी मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा साधक स्वागत भाषण के तौर पे, तो मैं विशेष रूप से तानिया शिकदार महाशय का बोलूंगा आज जो बेनेडिक्टरी एड्रेस के माध्यम से शुरू करने के लिए, फिर प्रसून सर शुरू करेंगे आज का विषय। नमस्कार सभी को। ধন্যবাদ অনন্ত। উপস্থিত শ্রী প্রসূন দত্ত সিংহ মহাশয়, একাডেমিক ডিন সমাজবিজ্ঞান তথা ভাষাবিদ্যা সংকায় এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মতিহারি বিহার, ডক্টর সঙ্গীতা বৈদিকী বিভাগীয় প্রধান সংস্কৃত বিভাগ গয়া কলেজ এবং ডক্টর সুতপা রায় মহাশয়া বিভাগীয় প্রধান লেডি ব্রেবন কলেজ কলকাতা, সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সত্রে উপস্থিত গুরুজনেদের শ্রদ্ধা, নম্র প্রণামাঞ্জলি এবং নমাগত গবেষক গবেষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের আমার স্নেহাশিস। আজকের সত্রের প্রধান বিষয় কালিদাসের সাহিত্যে জীবন তথা মূল্যবোধ। আমরা সবাই কম বেশি কালিদাসের সম্পর্কে জানি। কালিদাস ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার এক বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার। ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মতো দেখা হয় তাকে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে। তার কবিতা ও নাটকে ভারতীয় পুরাণ ও দর্শনের প্রভাব আছে। তিনি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রূপে পরিচিত। যদিও তার জীবন কাহিনী সম্পর্কে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন, এ নিয়ে অনেক ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি যেমন বিদুষী স্ত্রী বিদ্যাবতী কর্তৃক অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে দেবী সরস্বতী বরপ্রাপ্ত হন। তার সময়কাল নিয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত। প্রথম মতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তার মালবিকা অগ্নিমিত্রম নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন শুঙ্গ বংশীয় রাজা, যার শাসনকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব 185 থেকে 48 অব্দ। অপর মতে তার সময়কাল খ্রিস্টীয় 4th থেকে 6ষ্ঠ শতকের মধ্যে। এছাড়াও অন্যান্য মতবাদ আছে, কিন্তু এই দুটিকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়। বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি হিসেবেই তার খ্যাতি সমধিক। কালিদাসের বহু রচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়িনী ও রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়। 7ম শতাব্দীতে বাণভট্ট হর্ষচরিত গ্রন্থে কালিদাসের সপ্রশংসা উল্লেখ আছে। কালিদাস ঠিক কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু কেউ বলেছেন তার বাসস্থান ছিল হিমালয়ের কাছে, কেউ আবার বলেছেন উজ্জয়িনী অথবা কলিঙ্গে। এই 3টি অনুমানের কারণ হলো কুমার সম্ভব গ্রন্থে হিমালয়ের বর্ণনা, মেঘদূত গ্রন্থে প্রকাশিত উজ্জয়িনীর প্রতি তার ভালোবাসা এবং রঘুবংশম গ্রন্থে
বর্ণিত কলিঙ্গ সম্রাট হেমাঙ্গদের স্তুতিবাদ। এর আগে BSSEI সার্চ টু রিসার্চে শ্রীযুক্ত অরুণরঞ্জন মিশ্র মহাশয় কালিদাসকে নিয়ে আগামী দিনে কি কি রিসার্চ করা যাবে ইত্যাদি বিষয়ের উপর একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। আর শ্রদ্ধেয় প্রসূন স্যার সেই কালিদাসেরই সাহিত্যে জীবন তথা মূল্যবোধের উপর কি কি গবেষণা আগামী দিনে সম্ভব সেই বিষয়ের উপর দিশা নির্দেশ করবেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী মনোযোগ সহ সমগ্র সত্রটিতে যোগদান করে এই বিষয়ের উপর নিজ বুৎপত্তিকে সুবর্ধিত করতে পারো। সার্চ টু রিসার্চের সকল ভাই বোনেদের যারা এইরকম একটি সত্রের আয়োজন করেছে এবং প্রায় 1 বছর যাবৎ এইরূপ কার্যে ব্রতী হয়েছে, সেই হেতু আমি তাদের শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাই। অয়ম আরম্ভ শুভায় ভবত। আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে, স্যার প্রসূন স্যারের কাছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য। ধন্যবাদ। सर शुरू करिए आप अभी अपना वक्तव्य। सर शुरू कर सकते हैं आप अभी। प्रसून सर, सर शुरू कर सकते हैं आप अभी। ओके, मेरी हाँ आवाज सर आ रही शुरू है कर आपको? मेरी हाँ सर आवाज आ आवाज रही है आ रही है। आपको? कुछ तकनीकी कारण से जो है ना वो थोड़ी समस्या आ गई थी। हाँ सर शुरू करें सर। हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वागर्थायो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। BSSEI सर्च टू रिसर्च और संस्कृत विभाग लेडी ववरान कॉलेज कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ई माध्यम से संयुक्त डॉक्टर सुतपा राय जी, आप अध्यक्षा संस्कृत विभाग लेडी ववरान कॉलेज कोलकाता में हैं। सम्मानित अतिथि डॉक्टर तान्या सिकदर जी, समन्वयक संस्कृत विभाग मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ी डॉक्टर संगीता वैदिकी जी, आप संस्कृत विभाग गया कॉलेज गया में पदस्थापित हैं। और इस संगोष्ठी के समन्वयक श्री अमित कुमार दे जी, मेरे अत्यंत प्रिय और मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले श्री अनंता मुखर्जी जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और भारतवर्ष के विभिन्न भागों से जुड़े हुए सुधीजन, विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण और तमाम सुधीजन, मैं सबसे पहले तो आपके प्रति आभार प्रकट करूं कि आपने मुझे कालिदास के साहित्य और कालिदास के साहित्य में अनुस्यूत जीवन मूल्य पे विशेष रूप से बात करने का एक अवसर प्रदान किया है। विशेष रूप से विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, जो ये सूक्ति है, ऐसे कविकुल शिरोमणि, कविकुल गुरु और कवियों के कुलाधिपति महाकवि कालिदास और उनके साहित्य में अनुस्यूत जो लोकादर्श है और जो मानव मूल्य हैं, इस विषय पे मैं अपनी बात रखूंगा। कालिदास के संदर्भ में एक जनश्रुति है, आप सबने सुना है, कुछ उसमें नया नहीं है। जनश्रुति यह है कि पूरा कवीनाम गन्ना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि
ततुल्य कबीर भावः दनामिका सार्थवती बभूवः। जब श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी तो ये निश्चय किया जाना था कि कौन सा कवि जो है सबसे पहले आता है, सबसे, और कौन सा कवि सबसे बाद में आएगा। तो जब श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी तो सर्वप्रथम कालिदास को प्रथम स्थान देकर कनिष्ठिका उंगली पर रखा गया। बाद में विचार हुआ कि द्वितीय उंगली पर किस कवि को रखा जाए, तो फिर कालिदास जैसी विलक्षण प्रतिभा का कोई कवि नहीं मिलने के कारण यह जो अनामिका नाम जो है ना वो सार्थक मान लिया गया। तो यह कालिदास का महत्व है। कालिदास मूलतः आनंद और ऐश्वर्य के कवि हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की उद्भावना से आप्यायित उनकी कविता मानव जीवन के शाश्वत सत्य मूल्यों के उपस्थापन में, उसकी उपस्थापना करने में पूरी तरह से समर्थ है। और यही कारण है कि कालिदास शताब्दियों से लोकानुरंजन एवं विद्वत मनः परितर्पण करते हुए युगानुरूप अर्थ विक्षितियां का संधारण करती हुई स्वयं को सार्थक और प्रासंगिक बनाने के वैशिष्ट से संवलित हैं। ये कालिदास की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी रचनाओं में जीवन, समाज, शिक्षा, संस्कृति, राज व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, प्रकृति, स्त्री, पुरुष, प्रवृत्ति, मानव जीवन के जितने भी विषय हो सकते हैं उन सभी विषयों से संबंधित आदर्शों की व्यक्ति की गई है। जहां अन्य कवि सौंदर्य के स्वर्ण कलश के मोहक आवरण में फंसे रह जाते हैं, वहीं कालिदास उस कनक घट के भीतर ऐसे रत्न सन्निविष्ट कर देते हैं जो सद्य परनिवृत्ति के साथ पाठक को अमूल्य उपदेश भी देते हैं और लोकादर्शों या मानव मूल्यों की प्रतिष्ठापना भी करने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। क्योंकि कालिदास जनता के बीच के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाटकों, महाकाव्यों, खंड काव्यों का जो प्रतिपाद्य चुना वह ऐसा चुना जो उन्हें जनता के बीच ले जाता है। उन्होंने अपने नाटकों में, महाकाव्यों में, खंड काव्यों में कोई भी विषय ऐसा नहीं चुना जो जन समुदाय की समस्या नहीं हो, जो समाज की समस्या नहीं हो, जो मानव मूल्यों की उपस्थापना की समस्या नहीं हो, जो जीवन मूल्यों को उपस्थापित करने वाले तथ्य नहीं हो। उन्होंने अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में इसी को प्रतिपाद्य बनाया। उन्होंने यह देखा, उनके समय में बौद्ध धर्म अपनी प्रकाष्ठा पे थी। उनके समय में राजकीय संरक्षण भी बौद्ध धर्म को प्राप्त था और राजकीय संरक्षण प्राप्त बिहारों में एक अलग तरह का आमोद प्रमोद का वातावरण भी व्याप्त था। कालिदास ने अपनी आंखों से देखा था कि हमारा भारतवर्ष जो प्रबल कर्मवाद का समर्थक रहा है, तो ईशावास्योपनिषद कहता है कि जीवे में श्रद्धा सतम, अर्थात जहां हमारे ऋषियों ने 100 वर्षों तक निरोगी काया के साथ कर्म करने का उपदेश दिया है, जीने की कामना की है। जहां श्रीमद् भगवद गीता कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जहां कर्म में ही हमारा सर्वाधिकार है, वहां हमारे बौद्ध बंधुओं ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया कि हमें कुछ नहीं करना, हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, हमें प्रवज्ञा लेनी है। और एक समय ऐसा आ गया कि 12 से 15 वर्ष के युवक 12 से 15 वर्ष के युवक प्रवज्ञा ले रहे होते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करके युवक निर्माण की खोज में निकल रहे होते हैं। यह कालिदास का समय था। बौद्ध ग्रंथों में यह कहा गया है कि अकेले पाटलिपुत्र में 80,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। आप कल्पना कीजिए कि केवल जब 80,000 बौद्ध भिक्षु कभी एक साथ पाटलिपुत्र के सड़कों पर निकलते होंगे तो वो कैसा दृश्य होता होगा। हाँ, कालिदास ने अपनी कथा वस्तु के द्वारा जनता का मुंह मोड़ने का कार्य किया। जनता के बीच उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी, एक ऐसी कन्या शकुंतला की कहानी जो जंगल में पड़ी हुई है, जिसको एक विरक्त सन्यासी अपनी पालिता पोषिता पुत्री के रूप में उसको बड़ा करता है और इस सीमा तक उसका पालन पोषण करता है कि आज जब वो अपने पति के घर को जा रही होती है
तब उसके आंसू थमते नहीं हैं और वो कह रहा है कि यदि मुझ जैसे वितरागी को भी कन्या की विदाई में इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दुख हो रहा है, तो जब गृहस्थ प्रथम बार अपनी पुत्री को विदा करते होंगे, जब अपनी पालिता पोषिता को विदा करते होंगे, तो उनको कितना कष्ट होता होगा। याश्यत्तद् शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठस्तंभित वास ब्रतिस्कलुश्चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीडयन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुखै न वै। इतना ही नहीं, जब शकुंतला अपनी विदाई के समय महर्षि कनु से अपनी दोनों सखियों प्रियंवदा और अनुसुईया में से किसी एक को अपने साथ ससुराल भेजने का आग्रह करती है, तो देखिए कर्मवाद के पल्लवन और किस हद तक दायित्वबोध की अनुभूति है कि 80 साल का वृद्ध पिता कहता है, वत्से इमे अपि प्रदेये, बेटी अभी तो इनके भी हाथ पीले करने हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हैं। अर्थात तुम्हारी विदाई मात्र से मेरे दायित्व का अंत नहीं हो रहा, जब तक मैं इन दोनों को भी तुम्हारी तरह उचित वर प्राप्त नहीं करा देता, मेरी जवाबदेही समाप्त नहीं होती। कालिदास की कर्म में गहरी आस्था है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और ज्ञान से ही कर्म दग्ध होते हैं। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं। 3 तरह के कर्मों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कालिदास का मानना है कि ज्ञान से कर्म जो है दग्ध होते हैं। हम ज्ञान से, हमारे यहाँ औपनिषदिक वाक्य है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है, जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ प्रवृत्त कराती है, जो हमारे कर्मों को दग्ध कर हमें ज्ञान का प्रकाश में ले जाती है। रघुवंश महाकाव्य में सीता ने इस जन्म में अपने दुखों का कारण जन्म जन्मांतर के पातकों को ही बताया है। फलानुमेय प्रारभ्य संस्कारः, वो सीता कहती हैं प्रार्थना इव। जीवन की जो ये क्षण भंगुरता है और मृत्यु की अनिवार्यता तथा उनके प्रति सुधीजनों की दृष्टि भंगिता का उल्लेख इंदुमती के निधन के संदर्भ में विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, जब वशिष्ठ द्वारा दिए गए उपदेशों में उपलब्ध होता है, विशेष रूप से जहां कालिदास जीवन मूल्यों की अद्भुत व्याख्या करते प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं वहां, मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवित मुच्यते बुधैहि, जिसने शरीर धारण किया है उसका मरना तय है, उसका मरना अनिवार्य है। पंडितों का तो कथन है कि वास्तव में जीना ही एक विकार है, अतएव प्राणी जितने क्षण भी जी जाए उतने से ही उसे संतोष करना चाहिए। प्रियजन की मृत्यु को मूर्ख लोग ही कष्टकारक मानते हैं। जैसे छाती में किल गर गई हो, किंतु विद्वान लोग यह समझते हैं कि जो मर गया वह सकल प्रपंचों से मुक्त हो गया। उसकी समझ में मृत्यु वैसा ही सुख देती है जैसा हृदय में गरी हुई कील के निकलने से होता है। शरीर और आत्मा भी आपस में बिछुड़ने वाले हैं, तब स्त्री पुत्र इत्यादि बाहरी संबंधियों से विक्षोभ का दुख पंडितों को क्या होना चाहिए। अतः आप साधारण लोगों की भांति शोक मत कीजिए। यदि पर्वत भी वृक्ष के समान आंधी से हिल उठेगा तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा। ये संवाद रघुवंश का है। जीवन की अनिश्चितता यक्ष द्वारा अपनी प्रिया को दिए गए संदेशों में ध्वनित होती है। हे मेघ, सबसे पहले मेरी उस विरहनी से तुम यही कहना, अब व्यापनः कुशलम अबले पृच्छति त्वाम वियुक्तः पूर्वाभास्यम सुलभ विपदाम प्राणिनाम मेतदेव। कि अबले तुम्हारा सहचर जीवित है, उसने तुम्हारा कुशल पूछा है। जिन लोगों पर विपत्ति पड़ी हो उससे यही पूछना उचित होता है। कालिदास जीवन में
भाग्य के कर्तृत्व पर अमोघ विश्वास करते हैं। शाकुंतल के सप्तम अंक में जब दुष्यंत और शकुंतला मारीच के आश्रम में मिलते हैं, आप सब लोगों को प्रसंग याद है, तो और वहां जब वो पुनर्मिलन होता है शकुंतला और दुष्यंत का, तब जो शकुंतला का स्वरूप है, वसने परिधूसरे वसानाम नियमक्षाभू धृतैक वेणी, शकुंतला मैले कुशले कपड़ों में जो है ना वहां पे दिखती है, और नियमों के पालन से क्षीण उदास मुख वाली एक वेणी को धारण किए हुए शुद्धशीला करुणा शून्य सी शकुंतला वहां पे दिखती है। और राजा दुष्यंत क्षमा याचना करता हुआ शकुंतला के पैरों पे गिरा हुआ दिखाया गया वहां पे। यह देखकर शब्दमन भरत से पूछता है, भरत पूछता है शब्दमन जो है कि माँ यह कौन है? शकुंतला उत्तर देती है, ते भाग ध्यानी पृच्छा, हे बेटे तू अपने भाग्य से पूछ कि ये कौन है, अपने भाग्य से पूछ। कालिदास जीवन में सुख दुख उत्थान पतन को क्रमबद्ध श्रृंखला मानते हैं, तभी तो संसार को नानाविध सूचना देते हैं। शाकुंतल के प्रारंभ में आप देखिए वहां पे श्लोक आता है कि यातेक तो अस शिखरम पतिरोषधीना माविष्कृतो अरुणः पुरशर एक तो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यश्नोदयाभ्याम लोको नियमयत इवात दशांतरेषु। कालिदास का सौंदर्य वर्णन भी उनके काव्यों में दो प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है, एक तो लोकधर्मी और दूसरा नाट्यधर्मी। लोकधर्मी जो उनके वर्णन है, उन वर्णनों में लोक प्रवृत्ति एवं लोक संवेदना का मानक दिखता है, जबकि असहज वर्णन नाट्यधर्मी कहे जाते हैं। असहज वर्णन उनकी कविताओं में जो है लोक संवेदना का मानक के रूप में देखा गया। सामान्य रूप से लोक शब्द का अर्थ लोक्यते इति लोकः किया गया है, अर्थात जो अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है वही लोक है। हम जब कहते हैं कि कालिदास की कविताओं में लोक का वर्णन है, तो लोक को परिभाषित किया उन्होंने ही कि जो अपनी आंखों से दिखाई दे, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वही लोक है। इस प्रकार अपने चारों ओर विद्यमान जो समाज है हम उसी को लोक मानते हैं, किंतु लोक की और भी व्याख्या हो सकती है, उसकी ज्यादा विस्तृति है, क्योंकि लोक वह भी है जो आंखों से दिखाई पड़ता है और लोक वह भी है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जो अदृश्य है वह भी तो लोक है। जिस लोक में देवताओं का वास है, किन्नरों का वास है, गंधर्वों का जो समाज है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह भी लोक है। कालिदास की रचनाओं में उन सभी चीजों का ही वर्णन बहुत प्राचुर्य प्रचुरता के साथ देखने के लिए मिलता है। जाने कितने प्रकार के समाज हैं और जाने कितने प्रकार के लोक हैं। एक लोक हमारे शरीर के भीतर भी होता है जो अंतरलोक है। इस माने में कालिदास का अद्भुत वैशिष्ट्य है, उन्होंने अपनी कविता में लोक का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसको अछूता छोड़ा हो। जितना भी उनका कर्तृत्व है उसमें इन सब की व्याप्ति कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। किसी न किसी रूप में मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं, मानव जीवन के जितने भी आयाम हैं, सबका स्वरूप कालिदास की रचनाओं में देखने के लिए मिल जाता है। जब वो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि सरसिजम अनुविद्धम सैविलनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशु लक्ष्मीम तनोति यमधिक मनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुरानम मनरम नाकृति नाम। इससे पहले का भी श्लोक है जिसको आप लोग पढ़ते, जब शकुंतला के सौंदर्य को वो बताते हैं, मतलब सौंदर्य का वर्णन करते तो देखिए कैसा है उनका कवित्व, उनका पांडित्य देखिए कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहै रणाविद्धं रत्नम मधुनो मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च। नघम
न जाने भोक्तारम कमिह समुह पस्थ्यास्यति विधि। तो यह जो है, यह जो कालिदास की जो शैली है, यह जो कालिदास का शिल्प है, कि अलका में बताया गया है, वो अलका में रहती है, अलका में निवास करती है, और अलका कहाँ है, तो हिमालय की गोद में है। फिर भी यक्षिणी का सौंदर्य कुछ वैसा ही है जैसा कि अरण्यवासिनी शकुंतला का। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हिरणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारा। না না হচ্ছে আবার সাউন্ড নেই নাই কানেক্ট হলেও সাউন্ড হচ্ছে না ওরা ওরকম করে রাখে তো। मेरी आवाज मिल रही है ना आप लोगों को? हाँ सर, मिल रही है सर। हाँ सर, आप बोलिए सर। हाँ। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हिरणी प्रेक्षणा निम्नाभि श्रोणी भाराद अलस गमना स्तोक नम्रस्तनाभ्याम या तत्र स्यात् जीवति विषये सृष्टिरादेव धातुः। यक्षिणी यदि अलस गमना है तो शकुंतला भी मंद गति वाली है, वो धीमी गति में चलने वाली है। तो यक्षिणी जो है वो पक्व बिंबाधरोष्ठी है, तो शकुंतला के अधर भी जो है किसले राग हैं। वस्तुतः नारी सौंदर्य का एक स्थिर मानक कालिदास के मन में जो है वो कभी बदलता नहीं है। नायिकाएं बदलती हैं, उनकी कोटियां बदलती हैं, किंतु उनका स्वरूप नहीं बदलता, उनकी रूप संपत्ति नहीं बदलती। यही वैशिष्ट है कालिदास का, उनका एक मानक है। सौंदर्य के विविध आश्रयों का पारस्परिक भेद कालिदास जिस सलीके से करते हैं वह भी विलक्षण है। कन्या के सौंदर्य को वर्णित करना मर्यादा विरुद्ध है। जाने कितनी किंवदंतियां इसका पोषक प्रमाण है, परंतु ये भय तो असमर्थ कवियों के हो सकते हैं। कालिदास तो व्यंजनावृत्ति के कवि हैं। कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालिदास अपनी कविता में कहने योग्य सारी बातें कहते नहीं है, वो व्यंजनावृत्ति के कवि हैं। वो अपने काव्यों में एक विलक्षण प्रभाव छोड़ते हैं और गहन अर्थ को समझने के लिए पाठकों पे छोड़ देते हैं। आप व्यंजनावृत्ति का सहारा लेके उनके कविताओं का अर्थ समझते रहिए। कालिदास की यह विशेषता है, उनकी कविता में वो अपनी कविता में एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं और प्रतीयमानार्थ जो है, जो ध्वनि है, उस पे बहुत सी चीजें छोड़ते हैं। अब देखिए उसका एक उदाहरण देखिए कि अलका की कन्याओं के सौंदर्य का उनको वर्णन करना है, और आपको पता है कि जब हम कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कन्याएं तो सबकी होती हैं, बेटियां तो समाज की होती हैं। तो हम बेटियों के सौंदर्य के वर्णन में हमको मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। हम किसी बेटी के सौंदर्य का जब वर्णन करेंगे तो हम मर्यादा को नहीं छोड़ सकते हैं, और हमको उनके सौंदर्य का वर्णन भी करना है, उनके सौंदर्य की अप्रतिमता को भी हमको बताना है। अब कालिदास इसको कैसे बताते हैं? ये जो पूरा पद्य है जहां वो कहते हैं कि मंदाकिन्यः सलिल शिशरै सेव्यमानः मरुद्भिर मंदाराण मनुः तटरोहाम छायया वारितोषणाः अन्वेष्टव्यै कनकसिक्ता मुष्टिक निक्षेप गूढ़ै संक्रीडन्ते मणिभिर प्रार्थिता कन्या। अलका की कन्याएं कैसी हैं? तो देवता भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि उनको अपनी पत्नी के रूप में, अपनी प्रियतमा के रूप में, अपनी वनिता के रूप में प्राप्त कर सके। अब देखिए कालिदास को चूंकि अलका की जो कन्याएं हैं, अलका की जो बालिकाएं हैं, उनके सौंदर्य का भी वर्णन करना है और एक बेटी के मर्यादा को भी बचा के रखना, कन्या की मर्यादा की भी रक्षा करनी है। तो ऐसे कह देते हैं कि वहां की जो कन्याएं हैं अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में जो है ना वो रत्नों का खेल खेल रही हैं, और वहां पर देवता भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अलका की कन्याओं की सेवा वह वायु करती है जो गंगा के शीतल जल से, जो गंगा के जल से शीतल रहती है। उनका यह सौभाग्य है कि मंदार नामक देव वृक्षों की छाया से उन पर पड़ने वाली धूप रोकी जा सकती है। ये मुट्ठी में मणियां लेके स्वर्ण की धूल से छिपाती हैं और उनका सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है
कि देवता भी उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करें। यह जो कालिदास की वर्णना शैली है यह अद्भुत है। कालिदास ने अपने साहित्य में राग और सौंदर्य के भी उत्कृष्टतम और आदर्श रूप को उद्घाटित किया है। प्रेम को केवल एक भावना मात्र नहीं मानते, अपितु सत्य और आनंद स्वरूप मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन के इस प्रधान तत्व को सभी मानवों में उच्च समृद्धि के रूप में देखना चाहा है। उनकी दृष्टि में वह प्रेम कदापि प्रेम नहीं है जो अनाचार दोष से दूषित हो अथवा स्वार्थ विषय से संपृक्त हो। उनकी दृष्टि में वही प्रेम सर्वोत्कृष्ट है जो नैतिक आदर्शों पर अधिष्ठित होता है। वो प्रेम की कोटियां बताते हैं कि भक्ति, प्रणय और वात्सल्य के रूप में प्रेम की 3 कोटियां पाई जाती हैं। तथापि इसमें प्रेमी और प्रेमिका, प्रेयस और प्रेयसी की प्रणय लीला सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली मानी गई है। कालिदास ने स्त्री पुरुष का वास्तविक प्रेम वासना से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति समर्पण में, आत्मसमर्पण में माना है। उनकी समस्त काव्य कला इसी महान तत्व को प्रकट करती है कि किस प्रकार इंद्रिय वासना क्रमशः विकास को प्राप्त होते हुए पारस्परिक समर्पण के रूप में दिव्य रूप धारण कर लेती है। उनके प्रेम में मर्यादा का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। यदि शकुंतला ने प्रेम में कहीं किसी मर्यादा का अतिक्रमण किया तो कालिदास ने उसको प्रचुर दंड भी दिया है। और वह दंड भी ऐसा नहीं। आप याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का पहला श्लोक, विचिन्त्यन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम विवेत्सिना मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सना कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। शकुंतला थोड़ी सी अन्य मनस्क हो जाती है। जब दुर्वासा आश्रम में आते हैं तो शकुंतला उनका आतिथ्य नहीं करती है। वो शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई हुई है। अब थोड़ी सी अन्य मनस्कता के कारण दुर्वासा इतना बड़ा शाप दे डालते हैं कि जैसे पूर्व में संचित विवाह नहीं माना जाता था। तो अगर शकुंतला ने प्रेम में किसी मर्यादा का अतिक्रमण किया तो देखिए पूरे नाटक को देखिए, कालिदास ने शकुंतला को कितने प्रकार के दंड दिए हैं। शकुंतला पूरे नाटक में मारीच के आश्रय में ही उसका दुष्यंत से मिलन हो पाता है। 4th अंक के बाद तो शकुंतला अकेली हो जाती है। तो यह जो कालिदास की विशेषता है कि जहां मर्यादा का अतिक्रमण होता है वहां पे वो दंड भी देते हैं। आप देखिए कुमार संभव महाकाव्य में पार्वती कैसे कठोर तपस्या के पश्चात पति रूप में शिव को प्राप्त करना चाहती हैं, और जहां थोड़ा सा पार्वती को गुमान हो जाता अपने सौंदर्य का, उनको जहां सौंदर्य बोध होता है कि मैं बड़ी सुंदरी हूं, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथाम सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियसु सौभाग्य फला ही चारोता। अपनी आंखों के सामने ही भगवान शिव की क्रोधांगनी में कामदेव को जलाकर भस्म होता हुआ देखती हैं पार्वती, और मन ही मन शिव की पत्नी बनने से निराश हो जाती हैं और सोचती हैं कि कोई स्त्री यदि अपनी सुंदरता से अपने प्रियतम को न लुभा सकी तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। किंतु वही पार्वती कठोर व्रत का भी पालन करती है, कठिन तपस्या का पालन करती है और शिव को दास के रूप में प्राप्त करती हैं। शिव उनके सामने उपस्थित होते हैं और शिव कहते हैं अद्य प्रभृत
वनतांगी तवास्मि दासः, मैं कृतदास हूं, मैं आपके सामने एक दास के रूप में उपस्थित हूं। तो यह जो प्रेम की मर्यादा और तपस्या की मर्यादा, साधना की मर्यादा का उपस्थापन कालिदास ने किया है, यह यह कालिदास के साहित्य का बड़ा ही उच्च मानक है, उच्च बोध है। शिक्षा और शिक्षक के संदर्भ में भी कालिदास ने अपने काव्यों में, अपने नाटकों में बहुत विस्तार से विचार किया है। कालिदास सा विद्या या विमुक्ते को ही शिक्षा का श्रेष्ठ उद्देश्य मानते हैं। सच्ची शिक्षा की कसौटी यह है कि जैसे अग्नि में डालने पर सोना काला नहीं पड़ता, वैसे ही यह परीक्षा काल में मंद नहीं होती। उपदेशम विदुः शुद्धम तंतस्त मुपदेशिनः, उन्होंने तपोवनों में ऋषियों के आश्रमों को शिक्षा का केंद्र माना। ये आश्रम प्रायः दूरवर्ती प्रदेश में से रहते थे। महर्षि कर्ण को का जो आश्रम है, दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर से दूर मालिनी नदी के तट पर है। रघुवंश में वशिष्ठ आश्रम भी पर्याप्त दूरी पर है। विक्रमोर्वशी
हाँ सर, शुरू करिए आप। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि महाकवि कालिदास ने, आज हम जब शिक्षा नीति की बात करते हैं और तमाम तरह के शिक्षकों के आदर्श की बात करते हैं, शिक्षक को कैसा होना चाहिए इसकी बात करते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास से कितने साल वर्ष पहले, हजारों साल वर्ष पहले शिक्षकों के एक मानक को प्रस्तुत किया और कहा कि सृष्टा क्रिया कसचिदात्म संस्था संक्रांत नस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधु स शिक्षकानाम धुरी प्रतिष्ठा पैतव्य एव। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी विद्या में बड़ी निपुणता होती है, जिनकी विद्या बड़ी अच्छी होती है, और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको विद्या को संक्रांत करने आता है, विद्या को दूसरे तक पहुंचाने आता है। लेकिन शिक्षक वही अच्छा है जो जो दोनों में समन्वय स्थापित कर ले, जिसके पास ज्ञान भी समृद्ध हो और जो अपनी बात को संक्रांत करने में भी निपुण हो। कवि कालिदास शिशु जीवन के प्रेमी हैं। वो अपनी रचनाओं में वात्सल्य को भी बड़ा महत्व देते हैं। उनके सभी संभव संदर्भों में पृष्ठ स्वस्थ और प्रसन्न बालकों का चित्रण किया गया है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के जन्म के अवसर पर कालिदास कहते हैं, पुत्रोत्सवे माद्यति का ना हर्षात, पुत्र जन्म पर कौन नारी हर्ष से पागल नहीं हो जाती। रघुवंश में दिलीप का रघु के प्रति प्रेम यूं वर्णित हुआ है, अमंक मारोप्य शरीर योगजहि सुखैर सिंच मिवामृतम त्वचि। अर्थात गोद में रखते समय बालक रघु के शरीर से के स्पर्श से उन्हें ऐसा सुख मालूम होता है जैसे उनके शरीर पर अमृत की छींटे पड़ रहे हों। क्रूरवा और दुष्यंत को अपने पुत्रों के दर्शन से मिलने वाला आनंद संबद्ध प्रसंगों में सुंदरता पूर्वक चित्रित हुआ है। रघुवंश में कवि ने बताया कि वात्सल्य का सारतत्व पुत्र दर्शन की अभिलाषा है और पितृभक्ति का सार धर्म, आज्ञाकारिता एवं समाराधना में। रघुवंश में बालक राम के तेज एवं सौंदर्य का तन्मय चित्रण हुआ है। तेजसाम क्षीणवयः समीक्षते, कुश लौ भरत, ये सभी परम हृदयाकर्षक बालवृंद की सृष्टि करते हैं। भरत को सर्वदमन कहने में सटीकता दिखती है और उसमें यह भी ध्वनित है कि ऋषि के आश्रम में गर्भाधान तथा स्वर्ग में भी भरण पोषण प्राप्त करने वाला विशुद्ध संयमी सूरवीर बालक ही इंद्र की पवित्र भूमि भारतवर्ष पर शासन कर सकता है। सर्वदमन भारतवर्ष के वीर बालकों का प्रतिनिधित्व करता है, तभी तो वह शेर के बच्चे को उसकी माता सिंघनी के स्तनों को पूरा पूरा पीने से पहले ही उसके केसर को पकड़कर खींचता है, बालों को पकड़कर खींचता है और कहता है कि तुम अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। जिम्भस्व सिंह दंतास्यते गनिष्ये, अरे सिंह के बच्चे तो अपना मुख खोल, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। तो यह जो महाकवि कालिदास ने अपने संपूर्ण साहित्य में वो राजधर्म, राजा के कर्तव्य की बड़ी विस्तारित चर्चा की है और उसकी नीति, उसके व्यवहार का बड़ा विशद और एकांतिक वर्णन किया और राजा और राजधर्म के उच्चतम मानकों की स्थापना की है। रघुवंश के प्रथम सर्ग में रघुवंशीय राजाओं के गुणों के व्याख्यान का प्रसंग है। वे कहते हैं कि मैं उन पराक्रमी राजाओं का चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं जिनके चरित्र आरंभ से अंत तक पवित्र थे, जो कर्मों का प्रयत्न फल लाभ तक करते थे, जिनका साम्राज्य समुद्र के तीर तक फैला हुआ था और इंद्र की सहायता के लिए आते जाते जिन्होंने स्वर्ग तक अपने रथों की लीक बना डाली थी। वे रघुवंशी राजा शास्त्रानुसार यज्ञ करते थे, याचकों को मुंहमांगा दान देते थे, अपराधों का दंड वे अपनी लघुता गुरुता के अनुसार देते थे, समयानुसार कार्य करते थे, राजाओं के लिए बनाई दैनिक व्यवस्था के अनुसार ही आचरण करते थे। वे ब्राह्मणों के भक्त, प्रजा के भरण पोषण की चिंता करने वाले तथा प्रजा के सच्चे बंधु होते थे।
रघुवंश के प्रथम सर्ग में कालिदास ने वर्णन किया है कि सम्राट प्रजा से इसलिए कर वसूलते थे कि प्रजा के कल्याण का विधान कर सकें, और इसलिए वो प्रजा के सच्चे माता पिता होते थे, प्रजा के वे सब कुछ होते थे। कालिदास का समग्र साहित्य स्मृति प्रोक्त राजधर्म तथा कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल दिखता है। कालिदास कहते हैं, नई पाई हुई पृथ्वी तथा नया हस्तगत शासन, इनका शासन जो है शासन पालन कोमलता से होना चाहिए, जैसे नव प्राणी गृहीता का किया जाता है। वस्तुतः राजा को शासन के मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। उनकी नीति न तो अत्यंत कठोर होनी चाहिए और न ही अत्यंत मृदुल। उसे यह भी देखते रहना चाहिए कि प्रजाओं में असंतोष एवं अश्रद्धा का भाव प्रकृति वैराग्य नहीं आने पावे। इसके लिए उसे प्रसन्न रहना चाहिए तथा मधुर स्मित के साथ भाषण करना चाहिए। सुखो परोधि वृतम ही राज मुरुद्ध वृतम, राजा का जीवन बंदी गृह के समान कहा गया है, जिसमें कर्तव्यों के गहन भार के कारण सुख का अपरोध ही संभव है। शकुंतला के 5वें अंक में राजा के कठिन दायित्वों का अत्यंत स्पष्ट कथन किया गया है, जब प्रतिहारी कहती है कि अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः, राजा से मिलने की याचना की जाती है शकुंतला के लिए प्रतिहारी से। तो वहां कथन है कि हाँ, राजा अभी मिलेंगे, राजा अभी रात में मिलेंगे, और अविश्रमो अयम, लोकतंत्र के अधिकार में विश्राम का कोई अवकाश नहीं है, विश्राम नहीं होता है। जैसे सूर्य एक ही बार अपने घोरे जोतकर निरंतर चलता रहता है, जैसे पवन सदैव बहता रहता है, जैसे शेषनाग पृथ्वी का भार सदा वहन करते रहते हैं, उसी प्रकार प्रजा की संपत्ति का षष्ठांश ग्रहण करने वाला राजा भी निरंतर प्रजा कार्य में जुटा रहता है। इतना ही नहीं, कालिदास राजा की 3 शक्तियों का वर्णन करते हैं, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति तथा उत्साह शक्ति। राजा अज ने अपनी प्रभु शक्ति से अन्य नरेशों को अपने अधीन कर लिया, मंत्र शक्ति से राजा मंत्रणा पूर्वक शासन करते हैं और तंत्र शक्ति से उन सबको व्यवस्थित रखते हैं। उत्साह शक्ति से राजा शासन कार्य में जागरूकता तथा अंत अस्फूर्ति शक्ति का उपयोग करता है। इसी प्रकार कालिदास ने राजा के 3 महान कार्यों की व्यवस्था सुनिश्चित की है, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्र का आर्थिक उन्नयन। ये सभी राजा के प्राथमिक कर्तव्य हैं। कालिदास ने इसका संकेत प्रजानाम विनयाधाना दक्षिणा भरणादपि में किया है तथा त्रायते कहकर उन्होंने राजा के प्रधान धर्म क्षति से प्रजा की रक्षा करना माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास का पूरा वाङ्मय, कालिदास का पूरा साहित्य, चाहे उनके प्रबंध काव्य हों, चाहे उनके नाटक हों, चाहे महाकाव्य हों, भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, लोकादर्श, जीवन मूल्य, दार्शनिक एवं धार्मिक अवस्थाओं के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलू और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। कभी जीवन के द्वंद्व से बाहर निकलने वाले जब हम जीवन के द्वंद्व में होते हैं, उससे बाहर निकलने के समाधान के रूप में आप शाकुंतल के पंक्ति को याद कीजिए, जब वहां पे वो कहते हैं कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार किमस्याभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः। वो कहते हैं कि जहां पे संशय की स्थिति हो, जहां पे मन में कोई द्वंद्व हो, वहां पे अंतःकरण की प्रवृत्ति को, अंतःकरण की बात को प्रमाण मान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, माने आप ऐसे समझिए, भारतवर्ष की संस्कृति का जो मूलाधार है गार्हस्थ्य जीवन, उसमें पुत्री के विवाह के पश्चात ससुराल में पहुंचकर जिस प्रकार की व्यवहार की शिक्षा दी है कालिदास ने, वह भी माने आज के परिप्रेक्ष्य में तो उसकी बड़ी बड़ी उपादेयता है।
शाकुंतल के जो चतुर्थ अंक के जो श्लोक चतुष्टयम है, उसमें का श्लोक आप याद करें, स्वगुरुन कुरु प्रिय सखे वृतिम सपत्नी जने वर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भुष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य स्वनुत सेकिनी यान्त एवं गृहिणी पदम यु युवतयो वामः कुलस्याधमः। शकुंतला की जब विदाई होती है तो महर्षि कर्ण कहते हैं कि सास ससुर आदि अपने बड़ों की सेवा करना, अपनी सौतों से अपनी प्रिय सखियों के समान व्यवहार करना, पति के द्वारा किसी समय प्रतिकूल आचरण किए जाने पर भी, तिरस्कार होने पर भी क्रोध में आकर कुछ खराब व्यवहार, कोई निंदनीय व्यवहार नहीं करना। ऐसा करने वाली स्त्रियां अपने बंधु बांधवों के प्रति सदा उदार रहना, राज्योचित सुख भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान नहीं करना, और ऐसा करने वाली स्त्रियां, इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करने वाली स्त्रियां गृह स्वामिनी बनती हैं, और इसके विरुद्ध चलने वाली स्त्रियां कुल के लिए विपरीत और मानसिक पीड़ा देने वाली हो जाती हैं। तो यह जो कालिदास का माने मानक है, यह जो कालिदास का आदर्श है, यह जो कालिदास का जीवन मूल्य है, यह आज के समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी है। और प्राचीन समाज में भी जब जब एक सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल एक दूसरे तरह की थी, तब के लिए भी उतना ही अनुकूल था। इसलिए कालिदास के साहित्य जो है शाश्वत हैं। कालिदास के साहित्यों में जो जिन जीवन मूल्यों की व्याख्या की गई है, जिन मानकों की उपस्थापना की गई है, जिन आदर्शों की उपस्थापना की गई है, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के लिए, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही अनुकरणीय हैं, आज भी उतनी ही स्तुत्य हैं। इसलिए महाकवि कालिदास कविकुल गुरु हैं। महाकवि कालिदास सबके 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 प्रिय कवि हैं। तभी तो कहना पड़ा पश्चिम के विद्वानों को भी कि ओनली द सिंगल कंपोजिशन अभिज्ञान शाकुंतलम इज द बेस्ट कंपोजिशन ऑफ ऑल द कंपोजिशंस ऑफ शेक्सपियर। इतना ही नहीं, यह भी कहना पड़ा कि आप यदि पृथ्वी और स्वर्ग का आनंद एक ही साथ प्राप्त करना चाहते हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। कालिदास की रचनाओं को आधार बनाकर पूरे विश्व के साहित्य में, पूरे विश्व साहित्य में अन्य ग्रंथों की रचना हुई है। साहित्य की धारा कालिदास से प्रभावित होकर बदली है। यह कालिदास की विलक्षणता है, यह कालिदास की शाश्वतता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय ले लिया है। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। तो मैं अभी संगीता वैदिकी मैम के पास जाऊंगा। मैम कुछ बोलेंगे, वक्तव्य रखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय लेता हूँ। अगर ऑडियंस के बीच में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं सर को तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है। आप में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें, मुझे तमाम अपने शोधार्थी भी दिख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी यदि कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कहें। तो लगता है फिलहाल अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है सत्र संबंधी विषय में, तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर संगीता वैदिकी मैम को अनुरोध करूंगा कि मैम अपना वक्तव्य रखें। और संगीता वैदिकी मैम गया कॉलेज गया के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा है और जो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर में है अंगीभूत इकाई। मैम आपका वक्तव्य रखिए। जी नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है, मैम आवाज आ रही है। जी जी ठीक है।
आज के इस कार्यक्रम में जो कि लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज कोलकाता की तरफ से आयोजित है, इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच प्रोफेसर प्रसून दत्त जी का बहुत स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुत ही ओजस्वी और नितांत औचित्यपूर्ण और ओजस्वी वाणी से हम सभी को अभी तक अभिसिंचित किया। 1 घंटे से बीच में बाधाएं भी आई, पर उनको पार करके हम पुनः जुड़े और इस प्रवाह में हम आप्लावित होते रहे, इस ज्ञान प्रवाह में। आज का जो यह विषय है कालिदास के साहित्य में जीवन व मूल्य, इस विषय पर आपकी बहुत ही विशिष्ट उद्बोधन सुनने के लिए मिला और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली गरिमा में उपस्थिति जिनकी है वो है सुतापा राय मैम। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर तानिया सिकदर मैम, आपको भी नमन करती हूँ। और जो हमारे संयोजक समिति के हैं अनंत मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत नमन करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत देर से जो सुन रही हूँ और इस ज्ञान धारा में मुझे भी आप्लावित होने के लिए आपने यहाँ आहूत किया, इसके लिए आप सभी का बहुत साधुवाद। जब हम विशिष्ट रूप से, यद्यपि मैं मेरा विषय व्याकरण है, पर अनंत जी ने कहा कि आप इस विषय पर बोलिए और देखिए, तो मुझे लगता है इस अध्ययन को करने के बाद, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारी संस्कृत देववाणी है, इस देववाणी का एक श्रृंगार का रूप दिया है। कालिदास के जो ग्रंथ हैं वो उस देववाणी के श्रृंगार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। कालिदास का अध्ययन करने के बाद आपका आज का विषय है कि कालिदास के साहित्य में जीवन कैसा हो, उन्होंने जीवन पद्धति कैसी सिखाई है अपने ग्रंथों में। उनके ग्रंथों को जब भी हम देखते हैं, किसी भी ग्रंथ को देखें, तो वो जीवन शैली कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, ये एक श्लोक में भी बहुत अपार ज्ञान राशि को भर के हमारे समक्ष उपस्थित कर देते हैं। ये कला, ये निपुणता कालिदास जैसे महान कवि ही समर्थ हो सकते हैं। इतनी बड़ी ज्ञान राशि को किसी छोटे छोटे श्लोकों में बांध देना और जीवन के सूत्रों को छोटे से शब्दों में समेट करके हमारे सामने प्रस्तुत करना, हम इस तरह की जो पद्धति है ये कालिदास ने हमारे सामने प्रस्तुत करके हमारे जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए अपार श्रम किया है अपने जीवन में। जैसे उनके कुछ श्लोक, यद्यपि बहुत नहीं लेकिन फिर भी हमने छोटे छोटे श्लोकों को देखें। यथा शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषुणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन शैली है वो 4 भागों में बांटी गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से, है ना। तो हमने क्या किया है कि जब अब ब्रह्मचर्य अवस्था हो आपकी, तो उन्होंने कहा तब आप क्या करें, तो उन्होंने कहा शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, तब हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विद्या के अभ्यास के बिना युवावस्था में की सीढ़ी को चढ़ना ये निश्चित रूप से स्खलन का मार्ग बन जाता है। तो उन्होंने कहा अभ्यस्त विद्या नाम, विद्या प्राप्त करिए। आप जब शैशवावस्था में हैं, विद्या की महत्ता हमारे समस्त शास्त्रों में की गई है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। और जैसे हम लोग अपने नीति शास्त्रों में कहा गया है, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये श्लोक निरंतर आवृत्त करने से हमारे जीवन में निरंतर एक धारा प्रवाह बनी रहती है विद्याध्ययन की। ये श्लोक मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत प्रभावित करता है। तो ये अभ्यस्त विद्या नाम, ये कालिदास जी ने सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से ही जीवन शैली के संपूर्ण भागों को प्रतिपादित किया है। ये उनकी अपनी अद्भुत कला है। आगे कहते हैं यौवने विषयेषुणाम, आप जब युवावस्था में हो तो विषयों का उपभोग करें। वर्तमान काल में ये चीजें अब व्यवस्था में चल रही, शैशवावस्था में ही इन चीजों को बार बार टेलीविजन के माध्यम से छोटे बच्चों के सामने स्थापित किया जा रहा है, जिससे समाज भ्रमित है और उसका परिणाम आपके और हमारे सामने बारंबार देखने को मिलता है। तो ये जो प्रेरणा दी है, ये कालिदास की इस तरह की प्रेरणाप्रद श्लोकों को उपेक्षित करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कारण बनता है। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, इनका मनन करते हैं, तो जीवन जीने की एक कला उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने आती है और
के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित और दूसरों के मार्ग प्रदर्शक बनकर के उभरते हैं। कालिदास के ग्रंथों में, प्रत्येक ग्रंथों में, चाहे वो शाकुंतलम हो या रघुवंश हो या फिर वो मेघदूत हो या फिर वो कुमार संभवम हो, उन्होंने त्याग, तपस्या पर प्रभुत बल दिया है कि जीवन में अगर सौंदर्य भी है तो बिना तपस्या के कभी भी फलीभूत नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज के लिए कुमार संभवम को बहुत अच्छे से दिखाया है। उसमें शाकुंतलम में भी दिखाया, सौंदर्य अपार है, लेकिन जब तक उसमें तपस्या का अंश नहीं जुड़ा तब तक वो सौंदर्य कभी प्रतिभूत नहीं हुआ, किसी प्रतिफल को प्राप्त नहीं किया। तो कालिदास ने जीवन को के तमाम पहलुओं पर अपना दृष्टिपात करते हुए एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मनुष्य को बहुत अच्छे प्रकार से, जैसे कांता संमित तयोपदेश युजे जो ये पंक्ति कही गई है, ये कालिदास के ग्रंथों में बड़े अच्छे से पंक्तिशः दिखाई पड़ती है। जिन समस्याओं का समाधान सोचें, खोजने का प्रयास करें, कालिदास के ग्रंथों में उन्हीं समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होने लगता है। तो ये कालिदास के ग्रंथों का परम वैशिष्ट्य है। यद्यपि मुझे तो लगता है इन ग्रंथों के अध्ययन के बाद बार बार ये साहित्य शास्त्र संस्कृत जगत के अत्यंत प्रभूत ग्रंथ हैं, जिनका अध्ययन निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से बाल्यावस्था से ही कराना चाहिए। मैम थोड़ा सा रुकिए मैम, सॉरी। সঞ্চিতা জি, আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা বন্ধ করুন, মাইক্রোফোনটা খোলা আছে। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम बोलिए मैम, शुरू कर सकते जी। अभी ऑफ नहीं हुआ है उनका। जी हो गया जी, अब हो गया। तो इस तरह से मैं बहुत इस विषय को, जैसा कि हमारे बीच प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी ने बहुत ही विषयों का सुंदर रूप से प्रतिपादन कर दिया है। मैंने कुछ आपके लिए नोट भी किया था। जनता के बीच के कवि हैं, आपने कहा बौद्ध धर्म का अत्यंत प्रचार था, तो उस समय हमारे छोटे छोटे देश के जो युवा अभी बाल्यावस्था में थे वो सब के सब बौद्ध भिक्षु बन रहे थे। तो कालिदास जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से सात्विक जीवन जीते हुए और पराक्रम पूर्ण जीवन जीते हुए ग्रंथों की रचना की, जिससे हमारा समाज प्रेरित हो। इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी अपने ग्रंथों के माध्यम से। आपने कहा कि मानव जीवन के संपूर्ण आयाम कालिदास की ग्रंथों में प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने नैतिक आदर्शों की भी चर्चा की। वही प्रेम है जो नैतिक आदर्श है। राजधर्म की चर्चा की। आपने 3 शक्तियों के बारे में बताया। तो कालिदास ने हर पहलू को जीवन के लिए जो उपयोगी है वो सभी पहलुओं को छुआ है अपने ग्रंथों में। हर उम्र के व्यक्ति के लिए उन्होंने एक एक औषधि के रूप में सूक्तियों का प्रदान किया है कि जिसको जब जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से वो अपने समस्याओं का समाधान लेता चले। मैं अधिक नहीं कहते हुए ये कह सकती हूँ कि हमारे जो शास्त्र निर्देश किए गए हैं, हमारे जो भी हमारे संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं, वो उनको हम जितना पढ़ते हैं वो मनुस्मृति के इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं कि यथा यथा ही पुरुषः शास्त्राणि समधिगच्छति। जैसे जैसे व्यक्ति पुरुष हैं वो शास्त्रों के समीप जाते हैं या शास्त्रों का अवगाहन करने लगते हैं, तो तथा तथा विजानाति, है ना, विज्ञानम चास्य रोचते, वो उसी प्रकार से उन रहस्यों की चमत्कृति को अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं और उसके विज्ञान को, उसका जो परम विज्ञान है, आत्म तत्व है, ज्ञान चिंतन है या ज्ञान का प्रकाश है, वो उसको रोचते, उसको वो प्रसन्न चित्त करने लगता है, उसे आह्लादित करने लगता है। इसलिए शास्त्रों का अवगाहन हमें निरंतर करना चाहिए। जैसा उपदेश किया है उपनिषदों में, स्वाध्यायान मा प्रमदः, हमें स्वाध्याय करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन शास्त्रों का ऋषियों महर्षियों ने अपने जीवन को पूर्णतः हमें उपदेश देने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। उन विद्याओं को हम बारंबार अध्ययन करें और अपने जीवन को भी संवारें और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उन पंक्तियों से प्रेरित होने के लिए कहें, उन्हें सिखाएं। ये हम सबका शिक्षक होने के नाते दायित्व बनता है। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः इस आयोजक समिति में के जो हमारे मुख्य है अनंत मुखर्जी जी, उनका साधुवाद करते हुए इस सभा को नमन और वंदन करती हूँ। अभी मैं पापिया गराई जी से अनुरोध करूंगा कि
वे अपना जो धन्यवाद ज्ञापन वक्तव्य है वो रखें। पापिया गराई, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, बिहार। पापिया जी। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं पापिया गौराई आज इस सत्र में BSSEI के तरफ से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर को, जो हमारे साथ इस सत्र में विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी अपार ज्ञान निधि तथा कालिदास के साहित्य में जीवन एवं मूल्यबोध के विषय में अपनी दृष्टिभंगी और समस्त विषय को सहज, सरल और औचित्यपूर्ण पूर्णता से हमारे समक्ष उपस्थापन किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो नवागत शोधार्थी हैं, हमेशा जो वो कालिदास के विषय में जब शोध करना चाहते हैं तो उनको कई बार ये सुनने को मिलता है कि कालिदास के साहित्य में जीवन, कालिदास के काल के अतिरिक्त भी कालिदास के साहित्य में जो पशु पक्षी पौधे विकसे हैं, इन सब के ऊपर भी रिसर्च हो चुका है। तो जो तुम क्या रिसर्च करोगे? तो मुझे लगता है आज इस सत्र में सर को सुनने के बाद कि कालिदास के जीवन में साहित्य और मूल्यबोध को सुनने के बाद जो नवागत जो शोधार्थी हैं वो ये कह सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि भले ही कालिदास के ऊपर पहले शोध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है और आने वाले समय में भी कालिदास के ऊपर और भी शोध होंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं सर को पूरे श्रोता मंडली के ओर से धन्यवाद और प्रणामांजलि ज्ञापित करती हूँ कालिदास के विषय में हम सभी को इतना अपने वक्तव्य से इतना लाभान्वित करने के लिए। धन्यवाद की इस क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे चालिका शक्ति रूप में विराजमाना लेडी ब्राबन कॉलेज की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुतपा राय महोदया को। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तानिया सिकदर महाशया को, जो हमारे पूरे सत्र में हमारे साथ उपस्थित रहे हैं और प्रारंभ में कालिदास के विषय में संक्षेप में कुछ बोलने के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ बिहार के गया कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्षा डॉक्टर संगीता वैदिकी महोदया को, जो हमारे साथ पूरे सत्र में उपस्थित रहे हैं और कालिदास के विषय में, कालिदास के साहित्य में किस तरह से उन्होंने जीवन शैली के बारे में वर्णन किया है, एक ही श्लोक के माध्यम से ब्रह्मचर्य में क्या करना चाहिए, शैशव अवस्था में क्या करना चाहिए, यौवन अवस्था में हमें क्या कर्तव्य है मनुष्य के जीवन में, इन सभी के विषय में उन्होंने अपना जो मूल्यवान वक्तव्य उन्होंने हमारे साथ उपस्थापन किया, उनके लिए हम सभी श्रोता मंडली के ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ BSSEI के कर्णधार अमित कुमार दे महोदय को, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध विश्वविद्यालय के विद्वानों के द्वारा संस्कृत विषयक नए गवेषणा विषय को हमारे सामने उपस्थापन करने के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ अनंत मुखर्जी महोदय को, जिन्होंने स्वागत भाषण के माध्यम से आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह महाशय का परिचय हमारे सामने प्रदान किए। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे श्रोता मंडली को, जिनके बिना ये सत्र साफल्य मंडित नहीं हो पाता। तो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और अंत में शांति पाठ के माध्यम से इस सत्र का समापन करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद पापिया जी। सर। सभी को फिर से नमस्कार तथा शुभ रात्रि।
आज का सत्र हम लोग यहीं पे तब समाप्त करते हैं। मैं फिर से प्रसून दत्त सिंह महाशय को, संगीता वेदिकी मैम को और तानिया सिकदार महाशया जो हम लोगों के साथ उपस्थित थी और जितने सारे तमाम श्रोताएं हम सब के साथ उपस्थित थे, मैं सभी को प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, जो भी हम लोगों के जूनियर है सबके लिए ढेर सारा प्यार, कि सबका रिसर्च लाइफ, सबका जो शोध जीवन है सुखमय हो देवी सरस्वती की कृपा से। तो सर मैम, मैं सभी से इजाजत चाहूंगा कि अब अगर यहाँ पे रखें तो समाप्ति। आप सबका मेरी ओर से पुनः पुनः धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामना आप सभी को। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सभी को, थैंक यू।